Good morning, would be doctors. How is the Josh? Good. So first of all, happy World Environment Day. So today is 5th June. Would be doctors, this is a good question for your NEET 2020 for 26th July. It can be asked in biology कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज नीचे डेट्स लिखी हो सकती हैं 5th जून 6th जून 4th जून 7th जून इट इज ऑन 5th जून सो वुड बी डॉक्टर्स दिस इज माय 9th क्लास नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स in these classes I have discussed with you the topics of physics, that is vectors, projectile, motion in one dimension, in which I have discussed last 20 years NEET, AIPMT, CBSE PMT question of these topics. So today we are going to start with a new topic. We'll discuss the theory of this topic. Then we'll discuss the questions of this topic of NEET, AIPMT and CBSE PMT. Would be doctors, as I told you, these are my classes dedicated to COVID warriors, to this nation and to the PM Care Fund. So, doctors, would be doctors, so today to start with our new topic, first of all, we will pray. Om Deo Shanti Antariksh Shanti Prithvi Shanti Rapa Shanti Roshadhya Shanti Vanspate Shanti Vishwadeva Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Redi Om Shanti Shanti Shanti. So बच्चों, next topic will start with laws of motion, friction, work power energy. ये तीनों टॉपिक मैं इकट्ठे इनकी थ्योरी इकट्ठे ही डिस्कस करूंगा, मिक्स करके डिस्कस करूंगा. ये नहीं है कि अकेला लॉज ऑफ मोशन या फ्रिक्शन या वर्क पावर एनर्जी, तीनों को मिक्स करके मैं डिस्कस करूंगा. ऐसे तीनों इंटरकनेक्टेड हैं. तो इसमें सबसे पहले आई विल डिस्कस विद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन. ये वाला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? क्या स्टेटमेंट है इसकी? दो स्टेटमेंट है. कहते हैं नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट इज for an isolated system, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Means vector sum है, it is very very important. Vector sum of total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. So this is P1 vector plus P2 vector is equal to P1 vector prime plus P2 vector prime. So this is the total momentum before collision and this is the total momentum after collision. Clear? So बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर भी पूछ लिए जाते हैं. दिस इज नॉट ओनली फॉर वेक्टर सम लिख दिया, वैसे तो अंडरस्टूड है कि दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम holds good in 2 dimension as well as 3 dimension. तो इसके ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि देयर आर 3 equal masses which are lying on the
3 corners of the equilateral triangle. बहुत ही अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि वी आर हैविंग 3 masses equal masses small m are lying on 3 corners of the equilateral triangle. Each side of the triangle is alginate. These masses starts moving towards the centroid of the triangle with same velocity. और तीनों masses क्या हैं? They start moving toward the centroid of the triangle with same velocity. ऐसे मूव करते हैं and collide at the centroid of the triangle. और ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के ऊपर कोलाइड करते हैं. आफ्टर द कोलिजन, अगर इसे मैं कॉल कर दूं ए, इसे कॉल कर दूं बी, इसे कॉल कर दूं सी, इट इज सेड कि आफ्टर द कोलिजन द मास विच इज लाइंग एट ए कम्स एट रेस्ट, मास विच इज लाइंग एट बी retraces its path, and it is asked कि what is the velocity of the mass which is lying at C after the collision. उसकी velocity क्या होगी और वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा. क्लियर? नाउ क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए. There are 3 equal masses which are lying on 3 corners of the equilateral triangle A, B, C. They start moving toward the centroid of the triangle with same speed v, and after colliding at the centroid of the triangle, mass A comes at rest, mass B retraces its path. Then what is the velocity and direction of mass C after the collision? Clear? So बच्चों, first of all tell me कि what is the total momentum of the system before collision. Before collision total momentum क्या होगा, बताइए शाबाश. देखिए, these are the 3 vectors. ये हमारे पास क्या है, 3 वेक्टर्स हैं. तीनों वेक्टर का मोमेंटम क्या है, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, mv mv mv, और तीनों के बीच में एंगल क्या है, सेम है. जब भी आपके पास, मैंने वेक्टर्स में बताया था, इफ देयर आर 3 वेक्टर्स और दे आर एक्टिंग एट ए 1 पॉइंट और उनके बीच में एंगल सेम हो, तो उसके में उनका वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा. तो हियर वी विल से द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, वेक्टर सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, 0 होगा. क्लियर? एज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, 0 है, तो इट मीन्स दैट व्हाट इज माय स्टेटमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज 0, सो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. सो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में देखो, मास विच इज लाइंग एट ए, ये तो रेस्ट के ऊपर आ ही गया, इसका मोमेंटम 0 हो ही गया. लेकिन मास बी ने क्या किया, इट रिट्रेसेस पाथ. मास बी के पास मोमेंटम है, लेकिन वो मोमेंटम है किधर, जिधर पहले बिफोर कोलिजन जिधर इसके पास मोमेंटम था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है. इट मीन्स दैट सी को क्या करना होगा, द मास विच इज लाइंग एट सी, जो बी के पास मोमेंटम है उसके मोमेंटम को खत्म करना होगा. अब आफ्टर द कोलिजन बी के पास मोमेंटम इधर है, कितना है, इसे हम पीवी वेक्टर कह दें. तो इट मीन्स दैट सी के पास मोमेंटम क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, सेम अमाउंट का. सो वी विल से मोमेंटम ऑफ आफ्टर द कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सी विल बी सेम एज दैट ऑफ बी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी. क्लियर? मास दोनों के सेम है, तो इट मीन्स दैट आफ्टर द कोलिजन सी विल मूव विद स्पीड v in the opposite direction of b. In the opposite direction of b. Clear? आगे बात समझ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो बार बार ये क्वेश्चन आते हैं.
कहते हैं बॉडी ऑफ मास m at rest explodes into three masses, two of each of mass m/4. Each are thrown perpendicular to the direction with speed 3 meter per second and 4 meter per second. कहते हैं the third piece will be thrown with velocity. अब हमारे पास क्या कह रहा है कि एक मास m है और वो एक्सप्लोड कर जाता है, इनिशियली रेस्ट के ऊपर है और फिर क्या कर गया, रेस्ट से एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड करने के बाद इट स्प्लिट इनटू थ्री मासेस m/4 एंड m/4। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि थर्ड पार्ट क्या होगा, अंडरस्टूड है। टोटल मास पहले क्या था m, अगर दो पार्ट्स की मासेस m/4 है तो थर्ड का अंडरस्टूड है कि मास कितना होगा, m/2 होगा। कहते हैं जिनके मास m/4 है दे मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहते हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट। सो हियर आल्सो वी यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन? टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन क्या है, 0 है। अब यहां पे m/4 मासेस तो क्या है, दे आर मूविंग perpendicular to each other with what velocity, 3 meter per second and 4 meter per second. Now what will be the total momentum of these masses? क्या होंगे, total momentum will be in this direction, क्या हो जाएगा, 4 into m/4 का whole square, 3 into m/4 का whole square. So that will be becomes m/4 under root of 3 square plus 4 square. This will be 5m/4. This is the total velocity of the masses m/4 which moves perpendicular to each other. This is the total momentum of the masses which are moving perpendicular to each other. ये इनका total momentum है। अब total momentum before explosion क्या है, 0 है। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन तभी 0 होगा अगर जो ये दोनों ने मोमेंटम अटेन किया है, थर्ड पार्टिकल कितना मोमेंटम अटेन करे। थर्ड पार्टिकल का मास रह कितना गया, वो कितना है, m/2 है। वो अपोजिट डायरेक्शन में अटेन करे, जितना इसने अटेन किया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अटेन करे। सपोज उसकी वेलोसिटी क्या है, v प्राइम है, तो m/2 v प्राइम शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5m/4। तो v प्राइम क्या आ जाएगा आपके पास, 5/2। तो थर्ड पार्टिकल विल मूव विद ए स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 1A U-238 न्यूक्लियस initially at rest decays by emitting an alpha particle with speed v meter per second. The recoil velocity of a residual nucleus in meter per second. What it is said? हमारे पास एक न्यूक्लियस है, क्या है वो, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है हमारे पास। और यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है, कहता है इट रेस्ट के ऊपर है और ये डिके कर जाता है। यूरेनियम 238 का न्यूक्लियस ये डिके कर जाता है किसमें, अल्फा पार्टिकल में। अल्फा पार्टिकल में डिके कर गया और बाकी इसके पास क्या रह जाएगा, जो न्यूक्लियस बचेगा उसका मास कितना रह जाएगा, 234 रह जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 होता है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल में डिके किया इसकी स्पीड क्या है, v है। तो कहता है जी रिक्वायर्ड न्यूक्लियस है इसकी स्पीड क्या होगी। वेरी क्लियर। इनिशियली रेस्ट के ऊपर है, टोटल मोमेंटम बिफोर डिके 0 हुआ,
इसका मोमेंटम कितना होगा, दैट इज 4mv। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, प्लस 234mv प्राइम, दैट इज इट इज अटेनिंग द वेलोसिटी v प्राइम। तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v प्राइम क्या आ जाएगी, 4v डिवाइड बाय माइनस 4v डिवाइड बाय 234। क्लियर? सो वुड बी डॉक्टर्स, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब वहां पे चॉइसेस दी होगी, ए चॉइस दी होगी माइनस 4v बाय 234, बी चॉइस दी होगी प्लस 4v बाय 234, सी चॉइस दी होगी v बाय 34, डी चॉइस दी होगी नन ऑफ द अबव। अब आपका तो आंसर क्या आ गया था, क्या आ गया, माइनस 4v बाय 234। तो आपने बिना कुछ देखे क्या है आई गया आपके पास, आपने माइनस 4v बाय 234 के ऊपर टिक कर देना है। बट अगर आपने इस चॉइस के ऊपर टिक कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? बी चॉइस में क्या दिया हो, प्लस 4v बाय 234, इसका आंसर आएगा प्लस 4v बाय 234। रीजन भी उसने क्वेश्चन में ही पूछ लिया कि वो रिकॉइल करेगा, उसने क्वेश्चन में ही कह दिया कि इट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए आप जब आंसर लिखोगे तो उसके साथ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो आंसर विल बी क्या होगा, 4v बाय 234, जो कि बी चॉइस दिया हुआ है आपके पास। क्लियर? और देखिए क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए रेडियो एक्टिव nucleus initially at rest decays by emitting an electron and a neutron at right angle to each other. Clear? कहता है momentum of the electron is 3.2 into 10 raised power minus 23 kilogram meter per second, and that of neutron is 6.4 into 10 raised power minus 23 kilogram meter per second. कहता है what is the direction of the recoiling nucleus with that of electron. कहता है recoiling nucleus का the direction of recoiling nucleus with that of electron, इलेक्ट्रॉन के साथ उसका एंगल बताना है। तो एक बार क्वेश्चन फिर सुनिए, एक न्यूक्लियस डिके कर जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो डिके कर गया किसमें, बीटा पार्टिकल में और न्यूट्रॉन में। बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉन, they are moving perpendicular to each other with what momentum, with momentum 3.2 into 10 to the power minus 23 meter per second and kilogram meter per second and 6.4 into 10 to the power minus 23 kilogram meter per second. इतने मोमेंटम के साथ they decay with perpendicular to each other. It is asked कि what is the momentum of the, what is the direction of the recoiling nucleus with the electron. तो ये आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, दिस इज द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। इनिशियली इसका मोमेंटम क्या है, 0 है। दे डिके इनटू 2 पार्टिकल्स, वन इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन से बड़ा क्लियर है कि न्यूट्रॉन का मोमेंटम जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन है इस तरफ, लेकिन मैंने इसे ट्वाइस ऑफ पीई लिख रहा हूं। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मोमेंटम क्या है, ट्वाइस है। तो अंडरस्टूड है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो किधर होगा, दिस इज द रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ दिस बोथ। अब जो रेजिड्यूल न्यूक्लियस रह गया उसका जो मोमेंटम होगा दैट विल बी इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द रेजिड्यूल न्यूक्लियस। क्लियर?
नाउ अब ये हमारे पास इसने इसे पी आर वेक्टर की वैल्यू नहीं पूछी है, ये पूछा है कि दिस पी आर वेक्टर रेजिड्यू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के साथ कितना एंगल बनाएगा। ये एंगल हमारे पास आपने बताना है। क्लियर? ये एंगल पता चल सकता है आपको अगर आपके पास ये एंगल पता चल जाए, ये थीटा प्राइम पता चल जाए, तो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास 180 माइनस थीटा प्राइम। थीटा प्राइम क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहां से tan थीटा प्राइम वी कैन राइट tan थीटा प्राइम इज ट्वाइस ऑफ PE डिवाइड बाय PE, सो दिस इज थीटा प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2। तो हियर थीटा विल बी 180 माइनस tan इनवर्स, ये पाई माइनस tan इनवर्स 2, ये हमारे पास सेकंड चॉइस पड़ी हुई है, पाई माइनस tan इनवर्स 2। क्लियर? नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि रेजिड्यू न्यूक्लियस आपके पास न्यूट्रॉन के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो न्यूट्रॉन के साथ एंगल ये होगा, तो उस केस में थीटा प्राइम ये होगा, न्यूट्रॉन के साथ एंगल क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा डबल प्राइम आ जाएगा। थीटा प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी tan थीटा डबल प्राइम विल बी इक्वल टू PE अपॉन ट्वाइस ऑफ PE आ जाएगा। थीटा डबल प्राइम क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 0.5 आ जाएगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये मैंने आपके पास कुछ एग्जांपल्स करवाई हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल है फायरिंग ऑफ बुलेट्स। बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि व्हेन bullets are fired, this also holds the conservation of momentum. How firing of bullets holds the conservation of momentum? क्योंकि जब हम बुलेट्स फायर करते हैं, बिफोर फायरिंग बोथ बुलेट्स एंड गन एट रेस्ट, फायर करने के बाद बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम अटेन करती है और गन रिकॉइल कर जाती है सेम मोमेंटम के साथ। इन दिस वे इट होल्ड्स द, सो अगर बिफोर फायरिंग दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होता है 0 होता है, और आफ्टर फायरिंग अगर बुलेट्स क्या हैं, आफ्टर फायरिंग बुलेट जो हैं दे आर अटेनिंग द मोमेंटम PB, और गन जो है दैट विल अटेन द मोमेंटम PG। तो PB वेक्टर प्लस PG वेक्टर क्या होगा 0 होगा, तो PG वेक्टर क्या होगा दैट इज इक्वल टू माइनस PB वेक्टर होगा, और सिंपली वी कैन सी PG इज इक्वल टू माइनस PB, और वी कैन सी M कैपिटल B इज इक्वल टू क्या होगा, और सिंपली वी कैन से दिस इज इक्वल टू M into V, capital M is the mass of gun, V is the velocity of gun, small m is the mass of bullet, VB is the velocity of bullet. तो फ्रॉम में एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी, MVB डिवाइड बाय कैपिटल M। माइनस साइन तो पता ही है कि गन क्या करेगी, रिकॉइल करेगी। तो यहां पे मैं कहना चाहता हूं कि जितनी हैवियर गन होगी क्या होगी, जितनी हैवियर गन होगी उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी उतनी कम होगी। हैवियर इज द गन, लेसर विल बी इट्स रिकॉइलिंग वेलोसिटी। क्लियर? यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, कहता है इफ देयर आर n bullets fired per second from a gun there are n bullets fired per second with what velocity, small v। कहता है calculate the force required to hold the gun in its position। there are n bullets fired per second from a gun with speed v, मास ऑफ ईच बुलेट क्या दिया हुआ है स्मॉल m। कहता है व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन। तो इसके लिए याद रखो बेटो
कि फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन इज, बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, NMV क्या आएगा, NMV, N is the number of bullets fired per second, small m is the mass of each bullet, V is the velocity with which these bullets are fired. Clear? Now अब देखिए आया कैसे जी, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले आपके पास बुलेट का मोमेंटम क्या है, 0 है। बाद में बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया, mv। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना आ गया, mv। कितने टाइम में आया, n बुलेट्स आर फायर्ड इन 1 सेकेंड, तो 1 बुलेट इज फायर्ड इन 1/n सेकेंड, तो कितना टाइम लगा एक बुलेट को ये mv चेंज इन मोमेंटम के लिए, 1/n सेकेंड। तो फोर्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो mv डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज 1/n, तो क्या आ जाएगा, NMV। So this is very very important कि when n bullets are fired from a gun with a speed v, mass of each bullet is m, in that case force required to hold the gun in its position is NMV। डायरेक्ट भी ये आ सकता है मल्टीपल चॉइस में, और हो सकता है n की वैल्यू दियो, m की वैल्यू दियो, v की वैल्यू दियो, कैलकुलेट करना भी आ सकता है। क्लियर? रॉकेट प्रोपल्शन भी क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और रॉकेट प्रोपल्शन हमारे पास एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास जो मोमेंटम चेंज होता है, वैसे मोस्टली जो मोमेंटम चेंज होता है स्पीड चेंज के साथ होता है और उससे फोर्स एग्जर्ट होती है। लेकिन रॉकेट प्रोपल्शन ऐसा एक हमारे पास एग्जांपल है जिसमें जो मोमेंटम चेंज होता है वो मास चेंज के कारण, क्योंकि मोमेंटम क्या है, मास इनटू स्पीड, तो अगर m या v में से कोई भी फैक्टर चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, तो दिस इज रॉकेट प्रोपल्शन इज एन एग्जांपल जिसमें v की बजाय क्या होता है, v तो चेंज होती है, साथ में m भी चेंज होता है। m चेंज होने से क्या होता है, वो रॉकेट जो है रॉकेट के ऊपर एक थ्रस्ट एक्ट करती है, वो जिसके कारण रॉकेट क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। इट होल्ड दी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कैसे, क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल बर्न करता है, फ्यूल जो है वो नीचे की तरफ मोमेंटम अटेन करता है, और उस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए रॉकेट क्या है, ऊपर की तरफ मोमेंटम अटेन करता है। जितने रेट के साथ जैसे जैसे वो फ्यूल बर्न करता जाएगा वैसे वैसे रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट बढ़ती जाएगी रॉकेट की एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे रॉकेट की क्या है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें रॉकेट प्रोपल्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी, ये फॉर्मूले आपने याद रखना है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या होती है, v इज इक्वल टू v0 vr log e m0 by m। क्लियर? और एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट क्या होती है, दैट इज vr by m into dm by dt। और थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट क्या होती है, दैट इज vr into dm by dt। तो याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। Here velocity of the rocket at, clear, velocity of the rocket at any instant is v is equal to v0 plus vr log e m0 by m। यहाँ पे v0 क्या है, this is the initial velocity of the rocket, vr क्या है, that is the velocity of the fuel और relative velocity of the fuel with rocket है, जिसको कि हम क्या लेके चलते हैं, throughout the motion it remains constant। m0 क्या है, initial mass of the rocket है, और वो जो initial mass of the rocket है with fuel है, m is the mass of the rocket है when its velocity is v। और dm by dt क्या है, यहाँ पे dm by dt is the rate with which the fuel is burning। बट याद रखो बच्चों कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, दिस फॉर्मूला आई हैव रिटन कि व्हेन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है, नेग्लिजिबल है। अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी का भी इफेक्ट ले लेंगे तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस GT, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस G, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस mg। व्हेन वी
कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आल्सो। क्लियर? तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। एक आधी एग्जाम्पल मैं आपको करवा भी दूंगा इसके ऊपर। क्लियर? तो जैसे है क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, कहते हैं इन ए रॉकेट ऑफ मास 1000 kg फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 40 किलोग्राम पर सेकेंड। 40 किलोग्राम पर सेकेंड क्या है, फ्यूल कंज्यूम हुआ है। तो दिस इज द रेट विद विच द फ्यूल इज बर्निंग। कहता है वेलोसिटी ऑफ द गैस इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट इज 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। और क्या दी हुई है आपके पास, वी आर दी हुई है। तो इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट। तो वी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, 10⁴। dm/dt कितना दिया हुआ है, 40। तो ये क्या बन जाएगा, 10⁴ इंटू 40, तो दिस बिकम्स 4000 बन जाएगा। थ्रस्ट पूछिए। अब इसने ग्रेविटी की जब भी नथिंग इज मेंशन, इट मींस दैट यू हैव टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आल्सो। तो माइनस आपने mgb करना है, माइनस क्या करोगे, मास ऑफ द वेट ऑफ द रॉकेट भी करोगे। क्या आएगा, दैट इज 10⁴ आप इसमें माइनस करोगे। तो इस तरह से आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज 2 × 10⁻6 न्यूटन बन जाएगा। क्लियर? सॉरी 10 × 10⁵ न्यूटन आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? तो आपके पास सीधा डायरेक्ट में जिस रेट के साथ मास बर्न कर रहा है वो dm/dt दिया हुआ है, और वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल दी हुई है। व्हेन नथिंग इज मेंशन, आपने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को जरूर कंसीडर करना है। ठीक हो गया? नेक्स्ट है आपके पास कोलिजन। व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन क्या होता है, फिजिक्स में हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई बॉडीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोलाइड करती हैं, जरूरी नहीं है, वैसे तो हम इन रूटीन लाइफ में कहते हैं दो बॉडीज डायरेक्टली कोलाइड कर रही है, उसी को ही कोलिजन कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, इनडायरेक्टली भी कोलाइड कर रही हो, इंटरैक्ट भी कर रही हो, उसे भी हम कोलिजन कहते हैं। तो वुड बी डॉक्टर्स क्या क्या पढ़े हुए हैं आपने, कोलिजन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या है। फर्स्ट कोलिजन कौन सा है, इन इलास्टिक कोलिजन। सेकंड कोलिजन कौन सा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड कौन सा कोलिजन है, पहला क्या है, इलास्टिक, सेकंड क्या है, इन इलास्टिक, थर्ड क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक, और फोर्थ कौन सा कोलिजन है आपके पास, सुपर इलास्टिक कोलिजन। फोर्थ कौन सा है, सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो क्या होता है, चाहे इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, सुपर इलास्टिक कोलिजन है, इन सभी कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इन सभी कोलिजन में क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम। मींस इन सभी कोलिजन में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर होता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम आपके पास कंजर्व रहेगा। लेकिन आपके पास इलास्टिक कोलिजन है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आफ्टर द कोलिजन क्या कम हो जाना है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जानी है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडीज रेस्ट के ऊपर आ जाएगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होना है कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्या कर जानी है, आपके पास इंक्रीज कर जानी है। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन विल इंक्रीज। क्लियर? तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मोमेंटम सब में कंजर्व है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन, और सुपर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पे हमने एक टर्म डिफाइन की है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम क्या कहते हैं, इट इज दी विच मेजर्स द डिग्री ऑफ
इलास्टिसिटी ऑफ द कोलिजन। और इसे क्या कहते हैं, अगर आपके पास ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है m1 है, इट इज मूव विद स्पीड u1, दिस इज अनदर बॉडी ऑफ मास m2, इट इज मूव विद स्पीड u2, दिस इज द स्टेज देयर बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या है, ये मास m1 क्या है, इट स्टार्ट्स मूव विद वेलोसिटी v1, दिस मास m2 स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v2, दिस इज द स्टेज क्या है आपके पास आफ्टर द कोलिजन है। तो क्या है, हमने एक टर्म डिफाइन किया है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या मेजर करती है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कोलिजन। क्या मेजर करती है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कोलिजन। क्या कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द relative velocity of separation after the collision to the relative velocity of approach before collision. This is the coefficient of restitution. ये क्या है, v2 minus v1 divided by u1 minus u2. It is the ratio of relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before collision. ये coefficient, it is a dimensionless quantity, इसे कोई dimension नहीं है। और ये क्या मेजर करती है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी मेजर करती है। मतलब अगर इस E की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो इट मीन दैट कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा। E की वैल्यू लेस देन 1 है तो कोलिजन क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। क्लियर। अगर E की वैल्यू 0 है तो कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। ठीक हो गया। अगर E की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है तो कोलिजन क्या होगा, सुपर इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक हो गया। E 1 है इलास्टिक, लेस देन 1 इन इलास्टिक, 0 परफेक्टली इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 सुपर इलास्टिक। देखो, एक बॉल को आप किसी हाइट एच से ड्रॉप कर दो, अगर वो बॉल ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करने के बाद इट रीबाउंड्स एट दी सेम हाइट के ऊपर वापस आ जाती है, तो वो कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक। किसके बीच में, उस बॉल और ग्राउंड के बीच में। अगर उसकी हाइट कम हो जाती है तो इट मीन दैट वो कोलिजन क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। अगर वो बॉल कोलाइड करने के बाद रीबाउंड ही नहीं करती तो बॉल और ग्राउंड के बीच में कोलिजन क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। अगर वो कोलाइड करने के बाद उसकी हाइट ओरिजिनल हाइट से ज्यादा हो जाती है तो वो कोलिजन क्या होगा, सुपर इलास्टिक कोलिजन होगा। क्लियर। नाउ अब हमारे पास ये कोई भी कोलिजन है, जनरल ले लेते हैं। इस कोलिजन में ये इक्वेशन वैलिड होगी और सेकंड इक्वेशन क्या होगी, m1u1 कोई भी कोलिजन हो, टोटल भी बताया मैंने, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म याद रखो कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, m1 माइनस m2 इंटू ई इंटू u1 प्लस 1 प्लस c m2 u2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और आपके पास v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 माइनस m1 इंटू ई इंटू u2 प्लस 1 प्लस c m1 u1 whole divided by these are the velocities after the collision। आप v1 याद रख लो, v2 अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, m1 m2 से रिप्लेस हो जाएगा, m2 m1 से रिप्लेस हो जाएगा, u1 u2 से v2। तो ये फॉर्मूले आपको थोड़ा सा याद रखने होंगे। डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पे आ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देयर आर टू बॉडीज विच आर हैविंग इक्वल मासेस, और क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वे, देयर इज ए मास m moving with some velocity collides with another stationary mass m, another similar stationary mass। कहता है what will be the ratios of their velocities after the collision if small e is the coefficient of
restitution of these two masses. Then what is the ratios of their velocities after the collision if small is the coefficient of restitution of these masses? तो clear? क्या कहता है? Mass m collides with a similar stationary mass. तो it means that u2 क्या हुआ? 0 हुआ. तो यहाँ पे u2 की वैल्यू क्या करेंगे? 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके पास? सारी 0 हो जाएगी. और यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगी. क्लियर? और क्या दिया हुआ है? क्लाइड विद सिमिलर मास. m1 और m2 क्या हुए? सेम हुए. ये ये सारे mm कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पे ये mm सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ये v1 क्या बन जाएगा? 1 माइनस ई m इंटू u1 डिवाइड बाई 2m mm कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 माइनस e इंटू u1 डिवाइड बाई 2. तो v2 क्या आ जाएगा? 1 प्लस e इंटू u1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा. क्लियर? तो आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? v1 डिवाइड बाई v2. बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. रेशियोज ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन क्या होगी? 1 माइनस e डिवाइडेड बाई 1 प्लस e. क्लियर? रेशियोज ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन क्या होगी? 1 माइनस e divided by 1 plus e. Clear? Now it can be asked, okay, what will be their velocities of the two bodies if both the bodies are, अगर दोनों bodies क्या हैं, अगर इनमें collision क्या है? Elastic है. If the collision is elastic, तो आपके पास इनकी velocities क्या होंगी? Clear? अब yes, हाँ जी. तो क्या होगी? व्हाट विल बी देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन. तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर कोलिजन इलास्टिक है तो स्मॉल e की वैल्यू क्या रख देंगे? 1 रख देंगे. तो v1 क्या बन जाएगा आपके पास? v1 इज इक्वल टू क्या होगा? m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. और v2 क्या होगा? दैट इज m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस क्या होगा? 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. सो दीज आर द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन. v1 इज m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस e की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन व्हेन कोलिजन इज इलास्टिक. तो इलास्टिक कोलिजन के लिए भी ये फॉर्मूले लिखे जाते हैं. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं. अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि देयर इज ए मास m collides elastically with another similar mass, collides elastically another similar mass, which is this mass m1 is, there is a mass m moving with speed u1 collides elastically with another similar mass m2 which is moving with the velocity u2. कहता है after the collision their velocities will be, collision के बाद उनकी velocities क्या होंगी? तो collision के बाद उनकी velocities क्या होंगी? v1 और v2 होंगी. सिमिलर मासेज हैं, m1 और m2 क्या सेम है. e तो क्या है आपके पास? 1 ही है. ठीक हो गया? e क्या है यहाँ पे? 1 है. तो ये आपके पास 1 पर, ये यहाँ पे क्या है? दिस इज 1, दिस इज 1. क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे मासेज क्या है? सेम है. ये 2m हो जाएगा. ये तो क्या हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो ये v1 क्या बन जाएगा? u2 बन जाएगा. v2 क्या बन जाएगा? u1 बन जाएगा. तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इफ टू सिमिलर मासेस कोलाइड्स इलास्टिकली, लेकिन है कोलाइड्स इलास्टिकली आफ्टर द कोलिजन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज. कोलिजन के बाद ये दोनों मासेस अपनी वेलोसिटीज क्या कर लेंगी? एक्सचेंज कर लेंगी. मतलब v1 क्या हो जाएगा? u2 बन जाएगा और v2 क्या बन जाएगा? u1 बन जाएगा इफ देयर मासेस आर इक्वल. तो अगर सपोज कर लो सेकंड मास आपके पास रेस्ट के ऊपर है तो क्या होगा? आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट मास विल कम एट रेस्ट एंड सेकंड मास स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास. क्लियर? तो थोड़ा सा बच्चों अभी और है, इसको आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा.
और उसके साथ साथ ही मैं फिर आपको इसके ऊपर जितने भी लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स, वुड बी डॉक्टर्स। सो हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। वुड बी डॉक्टर्स, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। थैंक यू वेरी मच।